नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकालवती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र मोसुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निरुद्ध निराकार। प्रवचन सार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित प्रवचन साરની ટીકા તત્વ પ્રદીપિકા અને જયસેનાચાર્ય ભગવાનની ટીકા તાત્પર્ય વૃત્તિ એનો સ્વાધ્યાય આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવના પ્રવચન દ્વારા કરી રહ્યા છીએ। એમાં ચરણાનુયોગ સૂચક ચુલિકા ત્રીજો અધિકાર એનો બીજો પેટા ભાગ મોક્ષ માર્ગ પ્રજ્ઞાપન એની ગાથા 242 સુધી સ્વાધ્યાય આપણે કર્યો છે। 242ની ગાથા પછી અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને 16મો કળશ લખ્યો છે। તો આજે આ 16મો કળશ લઈશું અને એ 16મો કળશ 242ની ગાથાના અનુસંધાનમાં છે અને તે પછીથી આપણે 243ની ગાથા લઈશું। તો પહેલા 216મો કળશ આપણે લઈએ છીએ। 216મા કળશના ઉपोद्घातમાં અહીંયા કહે છે કે હવે શ્લોક દ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્તિને માટે મોક્ષ પ્રાપ્તિને માટે દ્રષ્ટા જ્ઞાતામાં લીનતા કરવાનું કહેવામાં આવે છે। આ શ્લોકમાં એ વાત કરવામાં આવી છે, મોક્ષ પ્રાપ્તિને માટે દ્રષ્ટા જ્ઞાતામાં લીનતા કરવાનું આ શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું છે। શ્લોકનો અર્થ અહીંયા આપ્યો છે, આપણે લઈએ છીએ કે છે કે એ પ્રમાણે એટલે જે 242મી ગાથામાં જે વાત કરવામાં આવી સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર મોક્ષ માર્ગ છે અને એમાં એકાગ્રતા એ જ સામાન્ય છે, એ જ મોક્ષ માર્ગ છે, એ વાત આવી। તો એના અનુસંધાનમાં અહીંયા કહે છે કે એ પ્રમાણે પ્રતિપાદકના આશ્રયને વશ એક હોવા છતાં પણ અનેક થતો હોવાથી અર્થાત અભેદ પ્રધાન નિશ્ચયથી એકાગ્રતા રૂપ મોક્ષ માર્ગ છે। એવું હોવા છતાં પણ કહેનારના અભિપ્રાય અનુસાર ભેદ પ્રધાન વ્યવહાર નહીંથી અનેક પણ એટલે કે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર રૂપ પણ થતો હોવાથી કહે છે કે એકતાને એટલે કે એક લક્ષણપણાને અહીંયા ફૂટનોટમાં એક વિશેષ અર્થ આપ્યો છે। અહીંયા એકતાને વિશે તો કે દ્રવ્ય પ્રધાન નિશ્ચય નહીંથી માત્ર એકાગ્રતા એક જ મોક્ષ માર્ગનું લક્ષણ છે। મોક્ષ માર્ગનું લક્ષણ તો એક જ છે, નિશ્ચય નહીંથી, દ્રવ્ય પ્રધાન નહીંથી, નિશ્ચય નહીંથી તો એકાગ્રતા, સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા એ જ મોક્ષ માર્ગનું લક્ષણ છે। એટલે એકતાને, એક લક્ષણપણાને તેમજ ત્રિલક્ષણપણાને પામેલો જે અપવર્ગનો એટલે મોક્ષનો માર્ગ, હવે ત્રિલક્ષણપણાને પામેલો એટલે આપણે જે વાત કરી સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર એ ત્રણ એટલે પર્યાય પ્રધાન વ્યવહાર નહીંથી દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર રૂપ ત્રિક મોક્ષ માર્ગનું લક્ષણ છે। ત્રણ પણ એવું મોક્ષ માર્ગનું લક્ષણ છે, પણ એ પર્યાય પ્રધાન વ્યવહાર નહીંથી છે અને દ્રવ્ય પ્રધાન નિશ્ચય નહીંથી તો માત્ર એકાગ્રતા એક જ મોક્ષ માર્ગનું લક્ષણ છે। તો એવો એ મોક્ષ માર્ગ તેને લોક એટલે જીવો, લોકમાં રહેલા જીવો દ્રષ્ટા જ્ઞાતામાં પરિણતિ બાંધીને લીન કરીને અચળપણે અવલંબો કે જેથી તે લોકો ઉલ્લસિત ચેતનાના
અતુલ વિકાસને અલ્પકાળમાં પામે. જીવો દ્રષ્ટા જ્ઞાતામાં પરિણતિ બાંધીને એટલે એકાગ્રતા કરીને એમાં લીનતા કરીને એમાંથી ચલિત થયા વિના અચળપણે એવા પોતાના સ્વરૂપને અવલંબો કે જેથી ઉલ્લસથી ચેતનાના અતુલ જેની તુલના કોઈની સાથે ન થઈ શકે એવા વિકાસને અલ્પકાળમાં પામે. તો એ 16મો ક્લાસ છે અને તે પછીથી ગાથા 243 છે. 243મી ગાથાના ઉપોદ્ઘાતમાં કહે છે કે હવે અનેકાગ્રતાને મોક્ષ માર્ગ પણ ઘટતું નથી. અર્થાત અનેકાગ્રતા તે મોક્ષ માર્ગ નથી, એકાગ્રતા તે મોક્ષ માર્ગ છે. અને એકાગ્રતાથી વિપરીત અનેકાગ્રતા, તો અનેકાગ્રતા એ મોક્ષ માર્ગ નથી. એ પોતાના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા એ મોક્ષ માર્ગ છે. અનેક જગ્યાએ એકાગ્રતા કરે એટલે અનેકાગ્રતા તે મોક્ષ માર્ગ નથી, એમ 243મી ગાથામાં દર્શાવે છે. તો 243મી ગાથા આપણે લઈએ. સંસ્કૃતમાં 243મી ગાથા આ રીતે છે. મુહ્યતિ વા રજતિ વા દ્વેષ્ટિ વા દ્રવ્યમ અન્યત આસાદ્ય યદિ શ્રમણો અજ્ઞાની બધ્યતે કર્મભિઃ વિવિધૈઃ. ગુજરાતીમાં ગાથા છે. પરદ્રવ્યને આશ્રય શ્રમણ અજ્ઞાની પામે મોહને વા રાગને વા દ્વેષને તો વિવિધ બાંધે કર્મને. અન્વયાર્થમાં કહે છે કે યદિ શ્રમણ અન્યત દ્રવ્યમ આસાદ્ય, જો શ્રમણ અન્ય દ્રવ્યનો આશ્રય કરીને અજ્ઞાની મુહતિ વા રજતિ વા દ્વેષ્ટિ, અજ્ઞાની થયો થકો મોહ કરે છે, રાગ કરે છે અથવા દ્વેષ કરે છે, તો તે વિવિધ કર્મભિઃ બધ્યતે, તો તે વિવિધ કર્મો વડે બંધાય છે. જો શ્રમણ અન્ય દ્રવ્યનો આશ્રય કરીને એટલે પોતાના ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વરૂપ, પોતાનો આત્મા, એને બદલે એના સિવાય બીજા કોઈ પણ દ્રવ્યનો આશ્રય કરીને અજ્ઞાની થયો થકો મોહ કરે છે, રાગ કરે છે અથવા દ્વેષ કરે છે, તો તે વિવિધ કર્મો વડે બંધાય છે. ટીકામાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન સ્પષ્ટતા કરે છે કે જે ખરેખર જ્ઞાનાત્મક આત્મારૂપ એક અગ્રને વિષયને ભાવતો નથી, જે ખરેખર જ્ઞાનાત્મક આત્મારૂપ એક અગ્રને વિષયને ભાવતો નથી, એટલે કે પોતાનો આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એવા જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માને એકાગ્રતાનો વિષય બનાવતો નથી. તે અવશ્ય જ્ઞેયભૂત અન્ય દ્રવ્યનો આશ્રય કરે છે. એક આત્માને જ એ વિષય બનાવે, એકાગ્રતા એમાં જ કરે, તો બીજે ક્યાંય એનો ઉપયોગ જાય નહીં. પણ જે એમ કરતો નથી તે અવશ્ય જ્ઞેયભૂત અન્ય દ્રવ્યનો આશ્રય કરે છે. પોતાના સ્વરૂપને જ્ઞેય બનાવી અને એમાં જ એકાગ્રતા, એ જ એના જ્ઞાનનો એ જ વિષય હોય, એ જ એનું જ્ઞેય હોય, એમાં જ એકાગ્રતા કરે. એને બદલે જો એ એમ ન કરે તો પછી શું થાય? બીજે બધે ક્યાંક બીજા જ્ઞેયોમાં એ દ્રષ્ટિ કરે છે, એનું લક્ષ્ય કરે છે, અને જેટલા જ્ઞેયો તરફ વળે છે એ પ્રમાણે અનેક જ્ઞેયો તરફ વળતા તો એને શું થવાનું? એને મોહ થાય, રાગ થાય, દ્વેષ થાય, એ જ થવાનું. એ વાત આ ગાથામાં કરવામાં આવી છે. એટલે કે છે કે તે અવશ્ય જ્ઞેયભૂત અન્ય દ્રવ્યોનો આશ્રય કરે છે અને તેનો આશ્રય કરીને આત્મજ્ઞાનથી ભ્રષ્ટ એવો તે સ્વયં અજ્ઞાની થયો થકો મોહ કરે છે, રાગ કરે છે અથવા દ્વેષ કરે છે, અને એવો મોહી, રાગી અથવા દ્વેષી થયો થકો
બંધાય જ છે, કર્મથી બંધાય છે, પરંતુ મુકાતો નથી. આથી અનેકાગ્રતાને મોક્ષ માર્ગ પણ સિદ્ધ થતું નથી. એકાગ્રતા છે, સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા એ જ મોક્ષ માર્ગ છે. તો આ 243મી ગાથા છે. તો આજે પહેલા 16મા કળશ ઉપર અને પછી 243મી ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈએ છીએ. પ્રવચન સુધા ભાગ 10મો. અહીંયા પાના નંબર 234 ઉપર છેલ્લા 2 પેરેગ્રાફમાં અહીંયા કહે છે કે अब श्लोक द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए दृष्टा ज्ञाता में लीनता, ત્યાંથી શરૂ કરી અને ગુરુદેવ આગળ સમજાવે છે અને પછી શ્લોક કહે છે અને પછી શ્લોકનો અર્થ કરે છે. હવે એનો શ્લોક કહે देखो, अब श्लोक द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए दृष्टा ज्ञाता में लीनता, दृष्टि ज्ञातन में प्रणति, ये करने को कहा जाता है. कलश कहते हैं. शार्दुल विक्रीडित संदेह इत्येयं प्रतिपत्तु आश्रय वशात एकोपी अनिकी भवन त्रिलक्षणम् अथ एकताम् उपगतो मार्गोपवर्गश द्रष्ट ज्ञात निबद्ध वृत्तिमचलम् लोक तस्मात् શું છે આસ્કંદતા છે. આસ્કંદતા લોક તમ આસ્કંદતા આસ્કંદતામ અનુસ્વરથી આસ્કંદમ ઇતિ અચિરાત અચિરાત विकासम अतुलम एन उल्संती आचिस्ते. उसका अर्थ वो कहा ने भेद भेद पाठ में टीका में आया ने, टीका में आया उसका यहाँ कलश बनाया. इस प्रकार प्रतिपादक के आश्रय के वश एम कहते हैं, कहनार वक्ता के आश्रय के वश भगवान आत्मा का पर्याय में 3 प्रकारों भेद में एक वक्ता का अभिप्राय में क्या कहना है उस अपेक्षा से व्यवहार नीचे हो जाता है. इस प्रकार प्रतिपादक के आशय के वश, कहने वाले का अभिप्राय के वश एक होने पर भी मार्ग तो एक ही है अंदर में अभेद स्वरूप, छता अनेक होता हुआ अभेद होने पर भी भेद रूप पर्याय में होता हुआ अभेद प्रधान निश्चय नहीं से एक एकाग्रता होता हुआ भी खुलासा किया. क्या एक होने पर भी का भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप आनंद में तीनों पर्याय एकाग्र है द्रव्य में, ये अपेक्षा से एक एकाग्र होता हुआ भी वक्ता के अभिप्राय अनुसार, कहने वाले का आश्रय के अनुसार भेद प्रदान व्यवहार नहीं से, भेद मुख्यता से कहने वाली नहीं, अनेक भी दर्शन ज्ञान भी होता होने से, दर्शन ज्ञान भी होता है वक्ता के आश्रय से. स्वामी जीवाई पण एकाग्रता वो 3 सम्यक ज्ञान चारित्र व्यवहार पर्याय प्रधान से कथन किया है. અહીંયા एक स्वरूप भगवान आत्मा पूर्ण द्रव्य अक्रिय शुद्ध, उसका अंत आश्रय लेने से, उसमें अभेद में दृष्टि पड़ने से सम्यक दृष्टि होता है. समझ में आया? जिसमें पर्याय भी नहीं वस्तु, टिकाव कहना भी एक काल की अपेक्षा है और वर्तमान ध्रुव है एक रूप समान, एक समय में हो वर्तमान में
आम बढ़ क्या नहीं, वो तो उसको बताना है। एक समय में पर्याय, एक समय में ध्रुव। ध्रुव नित्य अंश जी त्रिकाली, उसका अंतर लक्ष्य करने से, दृष्टि करने से, आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? तो कहते हैं कि ये दर्शन ज्ञानचारी तो होने विभक्ता की अपेक्षा एकता को तथा त्रिलक्षणता को प्राप्त जो अपवर्ग ना मोक्ष का मार्ग, द्रव्य प्रदान निश्चय से मात्र एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग का लक्षण है। जो एमा एकाग्रता, स्वभावनी एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग का। उमा स्वामी 3 प्रकार के पर्याय मोक्ष मार्ग कहा। आम क्या कह दिया? एकाग्रता लक्षण वाला सामान्य एम कहा અને सामान्य मोक्ष मार्ग कहा। अहिया ही एकाग्रता, ये संयतता, एकाग्रता लक्षण वाला सामान्य, जिसका दूसरा नाम मोक्ष मार्ग लो, ये यहाँ कहा। हमें पर्याय का कथन वक्ता के अभिप्राय से, भेद से कथन हो तो त्रिलक्षण वाला प्राप्त हो, अभेद से एक लक्षण वाला प्राप्त होता है। समझ आया? एक लक्षण वाला ने त्रिलक्षण वाला ने एकाग्रता एक रूप लक्षण है। स्वरूप में भगवान आत्मा में एकाग्रता एक लक्षण है। 3 प्रकार की पर्याय प्रकट हुई, ये अपेक्षा से कथन हो व्यवहार प्रधान त्रिलक्षण वाला प्राप्त होता है। ये मोक्ष का मार्ग, उसे लोग हमें कहते हैं, अरे जीवो एम कहते हैं। दृष्टा ज्ञाता में प्रणति बांधकर भगवान आत्मा देखने वाला, जानने वाला, ऐसा स्वभाव में परिणति बांधकर, अवस्था में लीन होकर, दशा में लीन होकर अचल रूप से अवलंबन करे भगवान आत्मा को, न चले ये रीते ध्रुव स्वभाव को दृष्टा ज्ञाता में, ये दृष्टा ज्ञाता ये त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, उसकी श्रद्धा ज्ञान અને परिणति बांधकर, समझ में आया? अचल रूप से अवलंबन करो। लो आदेश किया, अंतर्मुख भगवान आत्मा में जाओ, प्रवेश करो, एम कहते हैं। बाहर से हट जाओ। भगवान आत्मा ध्रुव दृष्टा ज्ञाता की पर्याय श्रद्धा ज्ञान की और परिणति शुद्धादि सब में लीन होकर अचल रूप से अवलंबन करो। विकल्प का भेद न उत्पन्न हो, ऐसा अवलंबन करो। देखो अमोक्ष मार्ग। हाँ, जिससे लोग उल्लसित चेतना के अतुल विकास को अल्पकाल में प्राप्त हो, वो कारण है भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु, उसका एकाग्रता से, उसको ध्येय बनाकर श्रद्धा ज्ञान लीनता करने से अल्पकाल में अचिरात से न वह लोग उल्सित चेतना के अतुल विकास को अल्पकाल में प्राप्त हो। देखो एमा क्रमबद्ध क्या आया? तो अल्पकाल में मोक्ष हो गया। देखो ऐसे कहा भाई, क्या किया? अल्पकाल मोक्ष जाए, मैं आज काले मोक्ष जाए हूँ, क्या रही हूँ આવું કરે તો અલ્પકાળ में જાય, થોડા કાળ में જાય, નહીતર તો ઘણે કાળ જશે, એમ થયું નહીં? ऐसे कहते हैं तो जे समय जवानो ये समय, पर ऐसा स्वरूप की अंतर दृष्टि ज्ञान रमणता करने से अल्पकाल में केवल ज्ञान आने की क्रम में आने वाला पर्याय है, इन्हें लांबो का होता एम कहते हैं। भाई बात भाई, ये मैं तकरार कर रहा, देखो हमारा अचेरात का है, पर अचेरात का अर्थ क्या? ये ऐसा जो आत्मा में
श्रद्धा ज्ञान चारित्र की रमणता होने से उसका कार्य अल्पकाल में होगा। होगा तो जिस समय होने वाला वो ही, पर ऐसी स्थिति में काल अल्पकाल में होगा, दीर्घ काल उसको लगेगा नहीं, एम कहते हैं। जो आचार्य कहते हैं अल्पकाल में, लंबे काल का मोक्ष था, वो ऐसा करे तो अल्पकाल में होगा, ऐसा है नहीं, ऐसा अर्थ उसका है ही नहीं। आऊं थाय ने अल्पकाल केवल थया बिना रहे नहीं, इसका ऐसा ही क्रम है, एम कहते हैं। अरे भगवान क्या करे, वांधा वाला तो वांधा ही निकालते सब। शास्त्र में कहने का आशय है, उसको और समझे नहीं, मैं अपनी कल्पना से क्या करे, जो अल्पकाल में, अल्पकाल में प्राप्त हो, उसमें जे समय के ज्ञान होगा, ये होगा, मोक्ष होगा, ये होगा, क्या रहा, वो ही रहा, सुन तो सही। समझ में आया? भगवान अपना निज स्वरूप पूर्णानंद की निधि, उसमें लीनता करे तो पीछे केवल ज्ञान प्राप्त करने का काल अल्प है, एम कहते हैं। समझ में आया? बीज होगी तो 15 दिन में 13 दिन में उसको पुण्य होगा तो जिसमें होगा ये 15 दिन में काल बताते हैं, उसको इतना काल में पुण्य होगी। समझ में आया? कैसा? उनसे चेतना के अतुल विकास, भाषा देखो, ओ शक्ति रूप में जो ज्ञान आनंद आदि पूर्ण था, भगवान आत्मा में एक शक्ति रूप, सत्व रूप, सत्ता रूप, भाव रूप, गुण रूप जो अनंत ज्ञान दर्शन आनंद आदि था, उसकी एकाग्रता से उससे चेतना उलसी प्रकट हुई, चेतना के अतुल विकास हुआ, अतुल विकास जिसकी तुलना नहीं, ऐसा विकास हुआ। शक्ति में से एकाग्र होने से अतुल विकास हुआ। समझ में आया? अतुल का अपरिमित विकास, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत दृष्टात्म वीर्य, ऐसा अतुल जिसकी पर्याय में तुलना माप क्या, एम कहते हैं। ऐसा वस्तु की शक्ति में तो चतुष्ट पढ़ाई है, शक्ति रूप तो है ही, पर शक्ति के अनुभव में प्रतीत कर रहे और लीनता हुई तो शक्ति में से अतुल विकास हो गया, कली खिल गई। समझ में आया? कली है कि नहीं, वनस्पति की खिल जाती है। ऐसे भगवान आत्मा में शक्ति रूप जो अनंत ज्ञान दर्शन आनंद था, उसकी एकाग्रता से पर्याय में उससे चेतना प्रफुल्लित थी, चेतना फाटी, गबारा फाट्यो, क्या भाई गबारों क्या फूगा 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 नहीं, फूगा होता है कि नहीं? छोकरा हो इतना पतला हो एकदम, ऐसा उलसित हुआ, पर वो तो पोला उलसित हुआ। समझ में आया? आ फूगा नहीं, छोकरा हो आवड़ा हो तो એટલી કળી નાનો આટલો હોય, खूब मोटा। यहाँ आत्मा में शक्ति रूप पूर्ण है, उसमें एकाग्रता रूपी फूकार माया अंदर में पूरा दूषित થઈ गया। समझ में आया? हो आचार्य जिससे એટલે अचल रूप से अवलंबन करे, जिससे ये लोग आ जगत का प्राणी, लोग એટલે आत्मा है, वो कहते कहीं બધા है, उससे चेतना के चेतना भगवान ज्ञान की चेतना शक्ति परिपूर्ण थी, नियम सार चेतना नियम टिकाव वो पर्याय में प्रकट हो गई। समझ में आया? अतुल विकास को, विकास है ना, पर्याय प्रकट हुए ना, शक्ति रूप थी, विकास हो गई, कल्पकाल में प्राप्त हो,
ऐसे अवलोको भगवान आत्मा को के अल्पकाल में केवल ज्ञान प्राप्त हो, अंदर की शक्ति का विकास पर्याय ना जाए। हाँ हाँ, जो आ करने का कहा नहीं तो आदेश दिया, देखो है कि नहीं है? अरे जीवो ऐसा करो भाई भगवान। हाँ हाँ हाँ, तेरा स्वरूप तो परिपूर्ण निदान पड़ा ही है, निदान का विकास करो। विकास कैसे हो? उसकी सम्यक दर्शन, निर्विकल्प प्रतीति, संवेदन ज्ञान और परिणति राग निर्मल दशा, ये द्वारा चेतना का अतुल विकास होता है, मोक्ष होता है। उसका भी अतुल विकास को अल्पकाल प्राप्त का अर्थ अनंत ज्ञान आदि मोक्ष की पर्याय प्रगट सही है, एम कहते हैं। मोक्ष न कहते हैं, अतुल विकास को अल्पकाल में प्राप्त हो, मोक्ष की पर्याय की बात क्या है, दूसरी भाषा समझ आया। 42 यह दिखाते हैं कि अनेकाग्रता के मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। अनेकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं, वो 43 में कहते हैं। मुंजई वारजई वादुसई वादवम आसे यदि समणो यन्नानी बज्जई कमे विवेही। આ જ્ઞાની એટલે મિથ્યા દર્શની હો, એમાં એવું થયું ભાઈ આ ત્રણ હોય છતાં ચિંતિત કરે, એ આત્માની ત્રણની એકતાની વાત થઈ। समझ में आया? हाँ तो पराश्रय बनाता ना ज्ञानी, पराश्रय करते हैं। 243 स्वद्रव्य ने आश्रय समन, देखो स्वद्रव्य ने आश्रय एकाग्रता है मोक्ष का मार्ग, और परद्रव्य ने आश्रय समन अज्ञानी पामे मोहने, वा राग ने वा द्वेष ने तो विविध बांधे कर्म ने प्राप्त होता है पाने के। ठीक है, जो वास्तव में खरेखर ज्ञानात्मक आत्मा, देखो भगवान आत्मा तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, ज्ञान स्वभाव स्वरूप आत्मा, उसमें कोई पुण्य पाप विकल्प राग आदि है नहीं। वास्तव में ज्ञान स्वरूप आत्मा रूप एक अग्र को नहीं भाता, ऐसे भगवान आत्मा एक रूप स्वद्रव्य को आश्रय करके आत्मा की भावना नहीं करते हैं। समझ में आया? ज्ञान स्वरूप आत्मा वस्तु न केवल ज्ञान कंद आत्मा, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा एक अग्र, ऐसा आत्मा रूप है, ज्ञानात्मक आत्मा रूप एक अग्र को नहीं भाता, ऐसे अंतर्दृष्टि में लेकर एक कव बना ध्येय में बनाकर उसकी भावना अंतर में नहीं करते हैं। वह अवश्य ज्ञेयभूत द्रव्य का आश्रय करता है। नो, स्वज्ञेय परिपूर्ण परमात्मा ज्ञान स्वरूप भगवान, उसका आश्रय नहीं करते हैं। समझ में आया? एक अग्र, एक विषय, एक वस्तु पूर्ण तेनो विषय ध्येय नहीं करते हैं, वो परद्रव्य का आश्रय करते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? चाहे तो देव गुरु शास्त्र हो, ये सब परद्रव्य है। परद्रव्य से क्या निकलते हैं दूसरी? देव गुरु शास्त्र शुद्धि परद्रव्य, ये प्रश्न हुआ था बोटाद में, है नितिन गोरा 10 के साल। शुद्ध आत्मा परमात्मा ही परद्रव्य, गुरु शुद्ध आत्मा का आनंद का साधक जीव परद्रव्य,
अरे लाख द्रव्य परद्रव्य, आश्रित तो ये परद्रव्य भिन्न है। वो तो कहते हैं कि समझे बाहर के छोड़कर पासा गुरु को बोल गया कि गुरु से मेरे मोक्ष होगा, हरियंत को से मोक्ष न्या बोल गया, तो यूं हुआ हम कहते हैं। परद्रव्य का आश्रय लिया, स्वद्रव्य का आश्रय छोड़ दिया। यथार्थ है। पढ़ाया करें उसमें क्या देखो ने वास्तव में ज्ञान भगवान, ज्ञान स्वरूप आत्मा रूप, ज्ञानात्मक आत्मा रूप है। ऐसे एक विषय को नहीं जब भाता, देखो आप भाता शब्द भावना है हो, एकाग्रता, वह जरूर ज्ञेयभूत द्रव्य का आश्रय करता है, स्वज्ञेय को आश्रय नहीं करता है, परद्रव्य का आश्रय करते। चाहे तो समेत शिखर हो, शत्रुंज हो, समोसरण हो, अरिहंत हो, कुंकुंदाचार आदि गुरु हो, केसरी कुटुंब परिवार आदि परद्रव्य, सब परद्रव्य है। ये परद्रव्य का आश्रय करके आश्रय करता है, उसका आश्रय करके ज्ञानात्मक आत्मज्ञान से भ्रष्ट है। हाँ, जितना परद्रव्य आश्रय करते हैं इतना ज्ञानात्मक स्वरूप से भ्रष्ट है। कहीं न्याय पाछू स्वयं अज्ञानी होता हुआ, देखो ये पण स्वयं अज्ञानी होता है, अपने से अज्ञानी हुआ है, कुछ कर्म से घर से नहीं। देखो आया मोह करता है, अर्थात परद्रव्य का आश्रय करके मेरे लाभ होता है ऐसा मिथ्या भाव करता है, एम कहते हैं। समय शिखर का भक्ति दर्शन करे तो अनुभव में उठ जाए। एक बार वंदे जो कोई आते भाव सहित नहीं, पर का आश्रय तो है ही नहीं। भाव सहित पर का आश्रय, भाव तो रागी है, अपना भाव तो अंदर में आता है, तो पर का आश्रय हुआ ही नहीं। समझ में आया? ये विशेष भाव होगा उसका। पदार्थ है कि नहीं, अस्थि सत्ता हुआ वालो पदार्थ है कि नहीं है, तो उसमें स्वरूप क्या ज्ञानात्मक कहा न, तो उसका स्वरूप ज्ञान आनंद आत्मज्ञान से प्रधान से कथम है। ज्ञान आनंद शांति वितरागता आदि स्वरूप आत्मा है। समझ में आया? ऐसा आत्मा को विषय को नहीं बनाता भाता, उसको लक्ष्य करके एकाग्रता नहीं करता। समझ में आया? अग्र नाम उसको विषय को नहीं करता, उसको विषय नाम ध्येय नहीं बनाता, वो जरूर ज्ञेयभूतन द्रव्य का आश्रय करता है। अपना वस्तु सिवाय पर अन्य वस्तु है, वो ऊपर उसका लग जाता है, तो लग जाता है तो उसका आश्रय करते हैं, तो परद्रव्य का आश्रय करने से तो विकारी उत्पन्न होता है। समझ में आया? चाहे तो तीर्थंकर सर्वज्ञ देव हो कि उसकी वाणी हो, तो भगवान की प्रतिमा हो कि उसका समोसरण हो कि उसका चतुर्विध संग हो, અને चाहे तो अन्य अनंत निगोध का जीव हो, और चाहे तो एक परमाणु से मानकर अनंत परमाणु का खंड ऐसा परद्रव्य, सब परद्रव्य है। समझ में आया? ऐसा पाठ है ना, पाठ में है देखो, दबंग अणु आते जब अंधेरा द्रव्य का आश्रय करते हैं, पाठ है, पहली दीक्षा है। हाँ, माखन बात करती है जना। देखो चरणान योग में ऐसी चीज, उन चरणान योग का विकल्प किसको है, तो उसका स्वद्रव्य आश्रय करते हैं,
और उसमें स्थिरता है, उसमें कमी है तो परद्रव्य का आश्रय से विकल्प उत्पन्न होते हैं तो व्यवहार कहने में आता है। पर स्वद्रव्य का आश्रय नहीं, यानी एकला परद्रव्य का आश्रय करके दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि करते हैं तो मोह भाव मिथ्यात्व भाव है, हम कहते हैं। बराबर, क्योंकि उसमें लाभ मानते मैं आश्रय करूं तो उससे मेरे लाभ होगा। भाई अरे बात है, लाभ माइटी परद्रव्य आश्रय माइटी नहीं, समझने में तो स्वद्रव्य का आश्रय करने माइटी है, सुनना है। सुनने में भी वो स्वद्रव्य का आश्रय करना, उसमें निकालना है। नहीं, ये बात ये भी है भाई। वितराग मार्ग अर्थात यथार्थ मार्ग, वास्तविक मार्ग वो वितराग मार्ग है, ये दूसरी चीज है। समझ में आया? कहते हैं कि खरेखर भगवान आत्मा चिदानंद प्रभु सहजानंद की मूर्ति आत्मा है। ऐसा आत्मा का आश्रय लक्ष्य ध्येय विषय अग्रज्ञेय बनाते नहीं और अपना सिवाय दूसरा पदार्थ को ज्ञेय ध्येय आश्रय यानी लक्ष्य करते हैं तो उसको राग उत्पन्न होता है, चाहे तो शुभ हो के अशुभ। अने माने कि मैं राग में सावधान हूं तो मिथ्यात्व भाव है। ऐसे कहते हैं। अरे बात है, समझ में आया? आश्रय करता है और उसका आश्रय करके ज्ञान स्वरूप आत्मज्ञान से भ्रष्ट भगवान आत्मा पूंज प्रभु ज्ञान का आनंद का गंज आत्मा है, आनंद का डूंगर आत्मा है। ये सहजानंद प्रभु आत्मा उसका से परद्रव्य को आश्रय करते हैं तो स्वद्रव्य के आश्रय से भ्रष्ट है, हम कहते हैं। समझ में आया? कुछ भाई गया भाई। भावनगर गया था ने मनसुख भाई हूँ नाम લઈ ગયા था ને બધું પાછળ વ્યાખ્યાન સાંભળો તપ કરવા આપવા કરવા આ કરવા એ બધું શું છે કે ધર્મ છે, આ બધું ધર્મ है। अरे भगवान परद्रव्य आश्रय जितना लग जाते हैं, चाहे तो परमेश्वर त्रिलोक का नाथ परमात्मा हो उसका लक्ष्य करे परद्रव्य तो राग ही उत्पन्न होता है। समझ में आया? अने राग उत्पन्न होता है तो स्वभाव का आश्रय से भ्रष्ट होता है, अने मानते कि मेरे लाभ है तो मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है, हम कहते हैं। बराबर। समझ में आया? जगतना पंथ ने परमेश्वर ना पंथ ने उगम आत्मा क्या कहते हैं, पूर्व पश्चिम का फेर है। कहते हैं कि जो आश्रय करके ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा आत्मज्ञान से भ्रष्ट, जो ज्ञान स्वरूप आत्मज्ञान से भ्रष्ट है, आत्मा का अंतर लक्ष्य करके आत्मा का ज्ञान करना उसे भ्रष्ट है, और पर का लक्ष्य करके राग उत्पन्न करना तो उसमें लाभ मानना वो मिथ्यात्व ने मोह भाव। देखो स्वयं अज्ञानी होता हुआ अपना आत्मा आनंद ने ज्ञान प्रभु आत्मा जिसकी प्रभुता ज्ञान ने आनंद की है आत्मा में, ये प्रभुता का लक्ष्य छोड़कर आत्मज्ञान से भ्रष्ट होकर परद्रव्य का आश्रय करके ये कोई मोही स्वयं अज्ञानी होता हुआ, स्वयं अज्ञानी होता हुआ, कोई कर्म के कारण से अज्ञानी है कैसा, आनंद प्रभु आत्मा उसका अज्ञान के कारण मोह करता है, मिथ्यात्व करता है।
एम कहते हैं। समझ में आया? भ्रष्ट होकर आत्मा का भान हो, स्वज्ञान और जरी परद्रव्य का आश्रय रहे तो अकेला राग उत्पन्न होता है, मोह नहीं। समझ में आया? वो राग उत्पन्न होता है, बंध का कारण है। पानी यहाँ तो अकेला आत्मद्रव्य का आश्रय छोड़कर अकेला परद्रव्य का आश्रय करते हैं, एम कहते हैं। समझ में आया? आत्मा सत 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 शाश्वत, इस सत शांति का स्वभाव का सागर आत्मा है। वितराग मूर्ति प्रभु है आत्मा। अरूपी पदार्थ है कि नहीं? है नहीं, महान पदार्थ है वो। ऐसा स्वभाव वान प्रभु, उसका ज्ञान से स्वलक्ष्य से भ्रष्ट होकर अकेला परद्रव्य का आश्रय करते हैं तो उसमें मोही उत्पन्न करते हैं। समझ में आया? क्योंकि मैं परद्रव्य का आश्रय करूं तो मेरे लाभ होगा, तो साथ में मोह उत्पन्न, मिथ्या उत्पन्न होता, एम कहते हैं। समझ में आया? राग करता है और परद्रव्य अनुकूल हो, परमेश्वर सर्वज्ञ देव वगैरह અને अनुकूल स्त्री कुटुंब आदि हो तो परद्रव्य का आश्रय करते हैं, उसको रागी उत्पन्न होता। इष्ट मानकर राग उत्पन्न होते हैं और द्वेष करते हैं। अनिष्ट द्रव्य ये तो ज्ञेय है, उसमें कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं, छता अनिष्ट मानकर, क्योंकि अपना ज्ञायक स्वभाव भगवान वितराग मूर्ति आत्मा, उसका आश्रय तो लिया नहीं, उसका ज्ञान हुआ नहीं, उसका अनुभव हुआ नहीं, उसकी दृष्टि है नहीं, तो उसकी परद्रव्य में दृष्टि के लिए है। वो आकांक्षा वर्तमान यारी मेळवू ये मत नहीं बधू दया दान तप एक नौकारથી ગણે તો નિદ્રા થાય। સાંભળ્યું છે ને? ત્યારે કરતા હતા ને તમે? નરકની નિદ્રા થાય હે? બસ નારકીના જીવની નિદ્રા। હા, ગજબની વાતો। બીજી ગતિ ખુલી રખડવાની રે। હા હા એમ કહ્યું છે કે આમાં એક નૌકારથી શું કહેવાય? નૌકારથી પથખાણ, નૌકારથી પથખાણ કરે તો નિદ્રા થાય। ધૂળમાં નિદ્રા ન થાય મારા। એ તો વિકલ્પ है નૌકારથી। આ બે એક પોર ન ખાવું કે એક પેર ન ખાઈ, तो एक राग है, शुभ है। અને એ हमें लाभ माने तो मिथ्याद की उत्पन्न होती है, एम कहते हैं यहाँ तो। आत्मा से स्वभाव का अनादर कर भ्रष्ट हुआ पर में पर के आदर से लाभ है, मिथ्याद की उत्पन्न करते हैं। समझ में आया? जो मिथ्यात अनंत निगोध में जाने का कारण है। વીરતી। હા, એમ કે એમ કહેતો અમે વીરતી કરીને બેઠા છીએ। વીરતીમાં ગ્રંથિ ભેદી થાય, તમારા અવીરતને ગ્રંથિ ભેદ ન થાય, એમ કહ્યું ભાઈ। અરે ભગવાન, અરે વીર તો કેદી હતો ભાઈ? वीरती तो राग से रहित भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु, उसका निर्विकल्प अनुभव हो ने पीछे स्वरूप में लीनता हो तब वीरती कहने में। अरे जमा वीर तो क्या हो तो सम्यक दर्शन से वीरती ले आए, सम्यक दर्शन से वीरती ले आए, निवृत्ति ले आए, उसे मिथ्यात्व में आ गया। हम कहते हरे काम आते दुनिया साथे तो मेळवू कषण बहुत जगत में। आखो मार्ग स्वादर आश्रय मार्ग परद्रव्य आश्रय मार्ग से लाभ माने सारा उगम आत्मा फेर है। समझ में आया? भाव साथ में क्या भाव पहाड़ में આવ્યું ને આપણને એવડે પૂનથી આશરો છે।
જીન માર્ગ નથી. વ્રત તે ભાવ ભાવ એટલે નહીં ઘણી વાર આપણે આવી આત્મધર્મ આવી. व्रत ने भक्ति ये तो બધું पुण्याश्रय भाव है, ये आत्मा आश्रित है. लोग इन्हें जैन मार्ग कहते हैं, मिथ्या दृष्टि ऐसा लिखा है. समझ में आया? रावण છે કે નહીં? હવે આવે ત્યારે ટાણું હોય તો એને આપણે આત્મધર્મમાં ઘણા વર્ષ પહેલા ઘણા વર્ષો પહેલા सब बात तो बात बहुत આવી ગઈ है. પુસ્તકો 7 લાખ બહાર પડ્યા. વાંચનારને અંદર નિવૃત્તિ છે, વાંચન કરીને મિલાન કરનાર છે. એ વાત છે પોતાના આત્મા હિતની નથી વાત. क्या समझ में आया? हाँ मध्यव्रत तो सम्यक दर्शन का अनुभव पूर्वक बात है. वो प्रमाणे अव्रत पण सम्यक दर्शन भान विना तारा मोकाशी करे हूँ मरी जा ने 12 महीना ना तब करी मिथ्या है. जीवन भाई आવું છે બાપા. કારણ કે પરદ્રવ્ય ના લક્ષ્ય સ્વદ્રવ્ય તો શું છે નહીં તો દ્રષ્ટિનો અનુભવ તો હે નહીં. તો પરદ્રવ્ય ને લક્ષ્ય અપવાસ કરે, ઓળી કરે, રાગ ઘટાડે, મંદ કરીને કોઈ આશા વ્રત પાવે आदि કહે, भगवान की यात्रा करे, समय फिक्र करे, भगवान 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 24 घंटा नमो वृंदा नमो वृंदा नमो वृंदा ओम 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 करे. ये परद्रव्य आश्रय राग उत्पन्न होता है ने लाभ मानते तो मिथ्या है. समझ में आया? भाव पाव એટલે મી બાશી ત્રાશી जो ત્રાશી है. आगे शिष्य पूछे जिन धर्म उत्तम कया तो धर्म का कहा स्वरूप है? पूछे भाव पाव है कुंकुंदाचार का. तो पुयादिशु वैसह्यम पुण्य जीणे शासन भणियम मोखो वीणो परिणामो अपनो धम्मो. जिन शासन विषय जिनेन्द्र देव ऐसे कहा है जो पूजा व्रत सहित हो तो पुण्य है. जैन शासन में परमात्मा त्रिलोकनाथ वितराग देवे व्रत हो सो पुण्य, पूजा तो पुण्य है. मोह के शुभ करी रहित आत्मा का परिणाम धर्म है. लौकिक जन ने अनुमति कोई कहे है अब क्या है? लौकिक जैन में रहा हुआ लौकिक जन है अज्ञानी, और अनुमति की कहे जो पूजा आदि शुभ क्रिया तीनी विषय और व्रत की आश्रित है तो जिन धर्म है. पूजा ने व्रत जैन धर्म है तो ऐसे नहीं है. जिन मत में जिन भगवान ऐसा कहा है जो पूजादि के विषय और व्रत सहित हो सो तो पुण्य है. ता पूजा और आदि शब्द करी भक्ति वंदना व्याव्रत आदि लेना यह देवगुरु शास्त्र कहते हैं. परद्रव्य है ना, परद्रव्य का आश्रय है ना, तो परद्रव्य का आश्रय कहा तो देवगुरु शास्त्र के अर्थ शुभ भाव है. तो पूजा भक्ति वंदना व्याव्रत मोहरी उपवास आदि व्रत है तो शुभ क्रिया है. इन्हीं में आत्मा का राग से शुभ परिणाम है. ताकरी पुण्य कर्म में इन्हीं को पुण्य है, वहां का स्वर्ग आदि भोग की प्राप्ति है. ये जैन दर्शन में जैन धर्म नहीं. है भाव पाव ત્રાસી મેગા થાય. આપણે આगे आत्मधर्म में सब आ गया है. समझ में आया? भक्ति वंदना पूजा व्रत वो तो परद्रव्य देवगुरु शास्त्र के लक्ष्य से उसके आश्रय की बात है. तो राग हुआ पुण्य है, धर्म नहीं, संवर धर्म नहीं. समझ में आया? व्रत है तो शुभ क्रिया है, शुभ राग है, साचा व्रत हो वो तो पुण्य का कारण है, धर्म है नहीं. कहते हैं जे कोई ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मज्ञान से भ्रष्ट अपना स्वरूप का ज्ञान में श्रद्धा में भान अंतर्दृष्टि में नहीं, ये स्वयं अज्ञानी होता हुआ
मोह करता है, पर में सावधानी करते हैं। स्वका सावधानी को छोड़कर पर में सावधानी करता है, मिथ्या भाव है। राग कर द्वेष कर, और ऐसा रागी द्वेषी होता हुआ बंध को ही प्राप्त होता है। उसको तो बंधन ही ये किला होगा, परंतु मुक्त नहीं होगा। उसको धर्म ने संबर निद्रा के मुक्ति होगी नहीं। समझ में आया? इससे अनेकाग्रता को मोक्ष मार्ग सिद्ध नहीं होता। क्या कहते हैं? अनेक अग्रता को, इसलिए अपनी एकाग्रता सिवाय अनेक नाम पद्र में एकाग्र है, उससे मुक्ति कभी होती नहीं। समझ में आया? पहलों के मुक्ति नहीं, इतने मिथ्या से मुक्ति नहीं होती है। मिथ्या से मुक्त होना भी एक मुक्ति है। समझ में आया? हाँ, टाइम से मिथ्या से मुक्ति है कि नहीं, मोक्ष है कि नहीं? क्या है तो यार कहीं मुझ में भी है। मिथ्या से मुक्त हुआ है कि नहीं? मुक्त हुआ है। समझ में आया? परद्रव्य के आश्रय से विकल्प उत्पन्न होते हैं। परद्रव्य आश्रय व्यवहार, और ये व्यवहार बंध का कारण है और उसमें लाभ मानते हैं। स्वर और स्वद्रव्य का आश्रय छोड़ते हैं तो मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है, तो वही महासंसार है। समझ में आया? मुझे माहौल में क्या किया धरे नहीं मिलती थी। समझ में आया? बंध को ही प्राप्त होता है, परंतु मुक्त नहीं होता। ये मिथ्या से मुक्त नहीं होता है। हाँ, बस मुक्ति बोले हमारे ना। हाँ, एम कहते हैं परद्रव्य का आश्रय करके स्वद्रव्य का आश्रय छोड़ते हैं, वो मिथ्यात को प्राप्त होता है, तो मिथ्यात से मुक्ति होती नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? इससे अनेक अग्रता को, अनेकाग्रता को, एक अग्र पहले किया ना, एक अग्र, अनेक अग्र। भगवान आत्मा अपना स्वरूप आनंद का एक का लक्ष्य विषय ध्येय अनुभव को छोड़कर अनेक अग्र, दूसरा अनेक पदार्थ अनंत है उससे अग्र विषय बनाते हैं, उसको मोक्ष मार्ग सिद्ध नहीं होता। उसको मुक्ति का मार्ग नाम सम्यक दर्शन सिद्ध नहीं होता, सम्यक ज्ञान सिद्ध नहीं होता, चारित्र नहीं सिद्ध होता, बंद मार्ग सिद्ध होगा। वो समझ में आया? वो 43 हुई। तो ये रीते 16मो कळश तथा 243 गाथा पूरा थया। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ।